Hello students, how are you? I hope you all are doing well and studying sincerely. Today we are going to do the revision of chapter sentence. आज हम sentence chapter का revision करेंगे. First will we revise the definition of the sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense. सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, उन शब्दों को मिला के सेंटेंस बनता है और जिसकी कंप्लीट मीनिंग समझ में आनी चाहिए. While writing a sentence, always remember 3 rules. जब भी हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं 3 रूल्स होता है जो हमें फॉलो करना है. फर्स्ट रूल इज़ ऑलवेज बिगिंस अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर. जब भी हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होना चाहिए. Now the next rule is most of the sentences end with a full stop. ज़्यादातर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ होता है. Now third rule is a sentence always has a verb and the word must be put in their proper order to make complete sentence. ग्रुप के जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए जिससे हमें उसकी मीनिंग समझ में आ जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल loves twice children. See the example. Milk give cows. Balloon many I have. Do they make complete sense? क्या इनका मतलब हमको समझ में आ रहा है? No, these are not complete sentence. These are not in proper order. Children loves twice, full stop. Cows give milk. The most important part of a sentence is the subject and verb combination. जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होता है. Now what is a subject? The person or thing spoken about is called subject. जिस person, animal, place की हम बात करते हैं it means हम जिस noun की बात करते हैं वो subject है. एंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है. वर्ब क्या होता है? इट मे बी एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड. वर्ब में वो एक्शन वर्ड हो सकता है लाइक स्लीपिंग, रनिंग, और हेल्पिंग वर्ब हो सकता है एज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, एट्सेट्रा. What is a helping verb? Helping verb is needed in a sentence to complete a meaning. हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है. ओके. What is said about the person or things is called predicate. हम उस person और things के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो predicate है. प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेंस वर्ब. प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वो हेल्पिंग वर्ब हो या एक्शन वर्ड हो. सी द एग्जाम्पल्स. चिल्ड्रन लव्स टॉयज. In this sentence we are talking about the children, so the children is subject and loves toys is predicate. Cows give milk. We are talking about the cows. Cows is a subject and give milk is predicate. Give क्या है? Give is a verb, तो give milk predicate हो गया. I have many balloons. Subject I and have many balloons is predicate. So these are subject and predicate. Next exercise. While writing down the following sentences, correct them. इन sentences को हमें correct करके लिखना है. First, April comes after March. April, A should be in capital letter, and March is also
in capital letter because it is a particular name of a month. April and March किसी मंथ का नेम है, इसलिए ये दोनों कैपिटल में होगा. सेकेंड, I work at Metro Hospital. In this sentence, I should be in capital letter and end with a full stop. Harish is going to America. Harish is the name of a person and first letter H will be in capital letter, and America A is also in capital letter because it is a particular name of a place. ये किसी प्लेस का स्पेशल नेम है, इसलिए अमेरिका का फर्स्ट लेटर ए भी कैपिटल में होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज, द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड. प्लेस द वर्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस. डोंट फॉरगेट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो जम्बल्ड हैं. हमको इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, सेंटेंस बनाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है. फर्स्ट, टेबल A4 हैज़ लेग्स. दिस इज़ नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ये क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें इसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है. द करेक्ट सेंटेंस विल बी अ टेबल हैज़ 4 legs. नेक्स्ट, हॉर्स वॉज ब्लैक ब्यूटी. इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस. अ ब्लैक हॉर्स वॉज ब्यूटी इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस. नाउ write the subject and predicate. You and I are learning about sentences. So we are talking about you and I. You and I is a subject and are learning about sentences is predicate. Nikki plays football. Nikki is the name of a person and subject play football. play verb है. यहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट होगा. प्ले फुटबॉल इज़ प्रेडिकेट. वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर. वी इज़ अ सब्जेक्ट एंड आर गोइंग आउट फॉर डिनर इज़ प्रेडिकेट एंड आर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. A sentence may also have an object. The object of a sentence comes after the verb in the predicate. बेटा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट में आता है वर्ब के बाद. ओके, नाउ इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग्स दैट डज द एक्शन. सब्जेक्ट क्या होता है? वो पर्सन और थिंग्स जो एक्शन कर रहा है. In the same sentence, the object is a person or a things that receive the action of the subject. उसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव कर रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, राधा फीड्स द बेबी. सो राधा इज अ सब्जेक्ट एंड फीड्स वर्ब है. बेबी क्या है? ऑब्जेक्ट है. एक्शन कौन कर रहा है? राधा. एंड एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? बेबी. सो बेबी इज ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट आर होम. जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्या और किसके लिए हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज प्लेड वेल एंड वॉन द ट्रॉफी. इन दिस सेंटेंस द बॉयज सब्जेक्ट है, एक्शन कर रहे हैं, एंड प्लेड वर्ब है एंड द ऑब्जेक्ट इज ट्रॉफी. जो एक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? ट्रॉफी के लिए हो रहा है. तो ट्रॉफी क्या है? ऑब्जेक्ट है. ओके चिल्ड्रन, लर्न एंड रिवाइज all the previous chapters and do exercises. Okay, take care. Thank you.